Okay. Good morning. Now today's topic is to learn how to calculate the standard graph by using MS Excel for glucose or maltose concentration. Let's learn what do you mean by standard graph first. In standard graph, known concentration of particular compound is used for a different increasing concentration. We know the concentration of compound, so we will get the OD with respect to that concentration. We know the Beer's and Lambert's law. According to that law, as the concentration of any compound increase in the solution, the absorbance will be increased. So ideally, in standard graph, what we are doing is, in this case, that is glucose or maltose standard graph, we will take glucose with a different concentration and we will get the absorbance value in the increasing amount, right? So as this is shown here, that you have as an example, we have taken different concentration of glucose from 1 milligram per ml to 10 milligram per ml, and we have taken absorbance after performing DENSA at 540 nanometer. So this is, as you can say, increase in the absorbance is observed, right? Now we need to plot the standard graph. What is the need of standard graph? Standard graph is a usual practice in biological work, basically biochemistry or enzymology, in which we plot the standard graph, and through that we are able to identify the concentration of unknown. The formula which is used for standard graph identification is equal to y is equal to mx plus c. See here, y is equal to absorbance, m will be the slope which will be obtained after plotting the standard graph. For identification of slope, for finding the slope, we have to plot the standard graph. C is intercept. Intercept means in standard graph the straight line is used. The point where the point on x-axis where straight line meshed or interconnect, that point is called as intercept, and x will be the concentration. In this formula, if we know the value of any three component, we can find the value of another fourth one. Okay, if we know, usually we know the y, that is absorbance value, then we will calculate the slope value. Intercept we will get after plotting the standard graph, and through these three values we will able to identify the value of concentration, that is x. Okay, so let's plot the standard graph initially, and as you can see, you need to draw this thing, you need to find this, calculate the standard graph and all the value through the Linest function. So what do you mean by Linest function? Linest function is a statistical calculation which is used for calculating the slope. So initially we will use the Linest function and calculate the slope, then we will plot the standard graph. Okay, so these are the reading, that is increase in concentration. These are the absorbance value which is increased. Okay, so what I am going to do is I will just plot equal sign, then I will go in formulas. फॉर्मूला में मोर फंक्शन में जाके स्टेटिस्टिक में जाके यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है लाइनेस्ट. ओके, जैसे ही आप लाइनेस्ट सिलेक्ट करोगे ये टैब ओपन हो जाएगा, उसमें हमको 4 वैल्यू ऐड करनी है. एक है y की वैल्यू, y मीन्स ये, ठीक है. ओडी की वैल्यू यहां से यहां तक की रेंज है तो हमने ऐड कर दी. देन हमको x की वैल्यू ऐड करनी है, वो यहां से लेके यहां तक है तो हमने वो ऐड कर दी. कांस्टेंट के अंदर हमें ऐड करना है ट्रू इन कैपिटल. ट्रू मीन्स जो भी आएगा वो, इसमें भी हमको ट्रू वैल्यू ऐड करनी है. यू जस्ट नीड टू क्लिक ओके. जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू आई, दिस वैल्यू इज ऑफ स्लोप. पर लाइनेस्ट फंक्शन में स्लोप के अलावा बहुत सारी चीजें भी होती है, तो उसको अपीयर करवाने के लिए स्क्रीन पे आपको क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले ऐसे
सेल सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 2 रो वर्टिकल रो एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस 4-5 जितनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देन यू नीड टू क्लिक हियर, ये फॉर्मूला पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये एरिया जिसको कैलकुलेशन में आपने लिया है वो अपीयर हो जाएगा। देन यू नीड टू प्रेस द की ऑन योर डेस्कटॉप, दैट इज शिफ्ट कंट्रोल एंड एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे ये वैल्यू यहां पे अपीयर हो जाएगी। अब ये वैल्यू कौन सी है वो देखते हैं। सो दिस वैल्यूज आर दिस, ये वैल्यूज कौन सी है, ये वाली है। दिस यू नीड टू एंटर, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है लेकिन आपको याद रख के इसको एंटर करना है। देखो ये क्या है, स्लोप है, दैट इज 0.048242 स्लोप, ये m, ठीक है। This will be error in slope, that is 0.007. R square is a regression, right? जितना R square ज्यादा होता है it should be 0.95 or more than 0.95. Then your standard graph is correct. Here it is 0.85. मतलब में आपका स्टैंडर्ड ग्राफ इतना करेक्शन नहीं है। R square वैल्यू उसका करेक्शन इंडिकेट करती है। दिस इज F वैल्यू, वो एक स्टेटिस्टिकल टर्म है। SS रिग्रेशन इज एरर, स्टैंडर्ड एरर इन द रिग्रेशन। सेम यहाँ पे देखो ये इंटरसेप्ट है, मींस एक्स एक्सिस पे कहां पे वो इंटरकनेक्ट होगा, ये नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि ये 0 में से पास नहीं हो रहा है। नॉर्मली जो मैन्युअली हम स्टैंडर्ड ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें हम लोग जो लाइन होती है स्ट्रेट उसको 0 में से पास करवाते हैं। हम 0 में से भी पास करवा सकते हैं, लेकिन आपने देखा था कि हमने फॉर्मूला में ट्रू वैल्यू डाली थी, तो ट्रू वैल्यू मींस स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली कहां से पास हो रही है वही यहां पे पता चलेगा। Then this is the error in standard intercept, ये स्टैंडर्ड एरर है। DF मीन्स डिफरेंशिएशन, ये कुछ स्टेटिस्टिकल टर्म्स है। बेसिक हमारा फोकस इंटरसेप्ट एंड स्लोप वैल्यू पे रहेगा, ये 2 वैल्यू पे, ठीक है। अभी यही डेटा हमको मिल गया, हमको क्या काम था, स्लोप वैल्यू का काम था, दैट इज m, दैट इज 0.048। हमको किसका काम था, इंटरसेप्ट, दैट इज -0.04। सो व्हाट विल बी योर फॉर्मूला, वो y इज इक्वल टू m, दैट इज 0.048242, x तो हमें ढूंढना है, प्लस c विल बी -0.04, ठीक है। अभी इसको हम लोग ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। एरिया सिलेक्ट कर लिया हमने, ग्राफ का x एक्सिस y एक्सिस दोनों चीज आ गई। देन यू नीड टू ड्रॉ द स्कैटर्ड ग्राफ, स्कैटर्ड ग्राफ आ गया। गिव अ टाइटल हियर, standard graph of glucose, okay। now यहाँ पे ये सब लाइंस है, हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यू कैन सी हियर दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, y एक्सिस इज एब्जॉर्बेंस। तो हम यहाँ पे ये प्लस की साइन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे एक्सिस टाइटल का ऑप्शन आएगा। तो एक्सिस टाइटल के ऑप्शन पे क्लिक करो तो आप यहाँ पे एक्सिस टाइटल जो है वो ऐड कर सकते हो, दैट इज concentration of glucose, that is your x axis, and on y axis there will be absorbance at 545 nanometer। ओके, नाउ अभी हमको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है। टू प्लॉट द स्ट्रेट लाइन यू नीड टू सिलेक्ट वन ऑफ दिस पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करो। एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो एड ट्रेंड लाइन है वो बटन क्लिक करना है। वो बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे लीनियर सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नीचे आओ, यहाँ पे सेट इंटरसेप्ट पे क्लिक नहीं करना है बिकॉज वी वांट द ट्रू वैल्यू, ओके। जस्ट नीड टू क्लिक डिस्प्ले इक्वेशन चार्ट एंड डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ऑन द चार्ट, ओके। इफ यू जस्ट सिलेक्ट इट, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अगर आप इस वैल्यू को शांति से ऑब्जर्व करोगे तो आप देख पाओगे कि
ये वैल्यू कौन सी है, y इज इक्वल टू m 0.0482, यहाँ पे आया है 0. कैलकुलेशन के हिसाब से भी 0.0482 है, ठीक है, माइनस c 0.043 आ गया ना, आर स्क्वायर वैल्यू दैट इज 0.8, इट शुड बी 0.95 और समथिंग, तो करेक्ट है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रेट लाइन गई है वो जीरो में से नहीं गई है, एक्स एक्सिस पे आगे से गई है, इसलिए ये वैल्यू को यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है। तो दिस इज हाउ दिस ग्राफ इज प्लॉट। अभी आगे अगर आपके पास ओडी रहेगी तो इसको सारी वैल्यूज को आप इस फॉर्मूला में डालोगे तो आपको आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन कंपाउंड जो है वो मिल जाएगा। फॉर दिस पर्पज दिस स्टैंडर्ड ग्राफ इज यूज्ड। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक्स।